Good morning, one and all. Today is 5th May 2021 and we'll be taking second day C++ session on object-oriented concepts. Yesterday we have seen different five different features of object-oriented programming language. Now let's elaborate and add more features to object-oriented programming features. Oops features जो है वो add करते हैं उसमें जो कल पढ़ा था. So let's revise and add it. Object-oriented programming, it comprises of these features which are being supported by the C++. Some of the features are being supported by the C++, not all. Persistence जो feature है वो that is not being supported by C++, but this feature is being supported by Java programming. Okay, now let's see the features. Encapsulation, data abstraction, single inheritance, polymorphism, persistence, delegation, genericity, multiple inheritance. Okay, encapsulation. Can anybody give me the example of encapsulation and the definition of encapsulation? What do we mean by encapsulation? Single line definition of encapsulation, which we have seen yesterday. Encapsulation means hiding the information. Hiding the information. The information is not being revealed. Is being hidden within the क्लास. जो क्लास है, क्लास के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो हाइड होती है, उसके अंदर छुपी हुई होती है. दैट इज अ क्लास इज बीइंग containing members and the members are data members and member function. We have seen the example of encapsulation. Like you are hiding some of the information and revealing only those information which are relevant to the other. The second feature is data abstraction. Abstraction, we have seen, abstraction means acquiring the relevant information. Abstraction में क्या देखा था कि हमने जो relevant information है उसको कैसे abstract किया जाता है. जैसे हमने बोला था कि पानी पड़ा हुआ है, उसके ऊपर sponge रखेंगे तो sponge absorbs the water, abstracts, खींच लेता है, ले लेता है. मैं कुछ आपको बता रही हूँ, आप उसमें से कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हो. Similarly, data is being abstracted in C++ programming. This feature is being supported by C++ as well as Java and other programming object-oriented programming language. Then we have the concept of single inheritance and multiple inheritance. मतलब inheritance का feature जो है that is being supported by the this C++ as well as Java programming. Java is also called as an object-oriented programming language. So this inheritance means what? Inheritance means acquiring the feature of the parent. Single inheritance means एक ही parent रहेगा. Multiple inheritance एक से ज़्यादा parent रहेंगे और एक से ज़्यादा child रहेंगे. So multiple inheritance is also possible. Single inheritance is also possible, and apart from that also there are different types of inheritance which are possible in C++ programming. So we will see when we start implementing inheritance. Then comes the concept of polymorphism. Polymorphism means one object can behave in many ways. एक object जो है एक से ज़्यादा तरीकों से behave कर सकता है. So एक object जैसे हमने मोबाइल का example लिया था, then we have taken other examples also कि एक object जो है एक से ज़्यादा तरीकों से behave कर सकता है. That is used for listening songs. That is used for surfing internet. Okay. It is used for chatting, talking. So polymorphism, one object can behave in many ways. Then we have the concept of persistence, delegation, genericity. These are the three new topics. And then multiple inheritance. Now let's talk about all these in detail. Okay. So the fundamental features of the object-oriented programming are basically encapsulation, data abstraction, inheritance, polymorphism, message passing, extensibility, persistence, delegation, genericity, multiple inheritance. Okay, now let's begin with the encapsulation. What do we mean by encapsulation? Encapsulation, it is the mechanism that associates. It is a mechanism that associates the code and the data. It manipulates into a single unit and keeps them safe from the external interferences and misuse. Okay, मतलब डेटा और कोड को
एक साथ बाइंड करके एक नाम के अंडर इसको रखा जाता है, उस नाम को क्या बोलते हैं? क्लास. सो क्लास इज व्हाट? क्लास इज द कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शन. सो एनकैप्सुलेशन मीन्स व्हाट? कोड और डेटा दोनों को इकट्ठा एक साथ रखा जाता है सिंगल नेम के अंदर. वो सिंगल नेम क्या कहलाता है? क्लास. एंड व्हेन वी क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द क्लास, इट इज कॉल्ड एज एन ऑब्जेक्ट, which is a real world entity. Object is a real world entity, is the instance. Now if you use if you want to use the data members and the code which are present in the class, you cannot use it using the class name. You have to create the instance of the class called as an object. तो क्या बोला मैंने? एनकैप्सुलेशन मतलब कि कोड, जो बिहेवियर है, जो मेथड है, जो फंक्शंस है, उसको प्लस जो डेटा मेंबर्स हैं वो दोनों को क्लब करके एक सिंगल यूनिट के अंदर डाल दिया. उस सिंगल यूनिट का नाम हमने क्लास दिया है और उस क्लास का इंस्टेंस जो क्रिएट करते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं. Next is data abstraction. What do we mean by data abstraction? The technique of creating a new data types that are well suited to an application to be programmed is known as data abstraction. It provides the ability to create a user-defined data types. See, already जो data types create किए हुए हैं, उनसे एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स क्रिएट करना, दैट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन का मीनिंग मैंने बता दिया था, बट हाउ दैट एब्स्ट्रैक्शन इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग. मतलब हमारे पास में इनबिल्ट डेटा टाइप्स थे सी प्रोग्रामिंग में, इंट, कैर, फ्लोट, लॉन्ग इंट, डबल, okay, short int. So using those inbuilt data types, we can create our own new user defined data type. Okay, so it provides the ability to create a user defined data types for modeling a real world. So हम क्या करेंगे, एक क्लास जो है उस क्लास को हम क्या बोलेंगे? It is an ADT, abstract data type. So class is one of the abstract data type, that is abstraction. We'll see how that class can behave as an abstract data type. तो क्लास इज वन ऑफ द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. जब हम क्लास क्रिएट करेंगे उसका नाम हम खुद देंगे. दैट इज अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स प्लस द फंक्शंस. क्लास के अंदर क्या क्या रहता है? क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं और बहुत सारे वेरिएबल्स को डिफाइन किया जाता है, उनको क्लब किया जाता है और एक सिंगल यूनिट क्रिएट की जाती है, दैट इज अ क्लास. तो क्लास इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, दैट इज it incorporates data abstraction features. Then comes the inheritance. As we have seen, C++ supports both single inheritance, multiple inheritance, hierarchical inheritance, multi-level inheritance, multiple inheritance. Okay. It allows the extension and reuse of existing codes without having to rewrite the code from the scratch. मतलब अगर एक कोड पहले से लिखा हुआ है, उस कोड को हमको दोबारा से यूज करना है, उस कोड को किसी और डेटा के लिए यूज करना है, तो हमको वो कोड दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. हम क्या करेंगे? सिंपली उसको रीयूज कर लेंगे, उसको सिर्फ नाम से बुला लेंगे. दिस इज द फीचर विच इज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द concept called as inheritance. तो inheritance में क्या होता है? Inheritance involves the creation of a new class. एक क्लास पहले से एग्जिस्ट कर रही है, जो क्लास पहले से एग्जिस्ट करती है उसको हम बोलेंगे बेस क्लास या पेरेंट क्लास, और उस क्लास से एक नई क्लास डिराइव करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज अ डिराइव क्लास. सो क्लास, एक क्लास से दूसरी क्लास जब हम डिराइव करते हैं तो दैट इज द फीचर ऑफ द इनहेरिटेंस. So thus enabling the creation of the hierarchy of the class and simulates the class and the subclass. So single inheritance refers to deriving a class from a single base class. मतलब एक single base class से एक new derived class derive करना, that is the feature of the single inheritance. Multiple inheritance में क्या होता है? The mechanism by which a class is derived from more than one base class. एक से ज्यादा base class है, हमारे पास एक base class है, दूसरी base class है, उन दोनों को features मिलाकर एक नई class create करना, that is पॉसिबल इन मल्टीपल इनहेरिटेंस. मतलब दो बेस क्लास हो गई या तीन बेस क्लास हो गई, उससे ज्यादा एक क्लास के फीचर्स, दूसरी क्लास के फीचर्स, तीसरी क्लास के फीचर्स या उससे ज्यादा क्लासेस के फीचर्स सबको कंबाइन करके एक नई क्लास क्रिएट करेंगे और उसमें सारे फीचर्स आ जाएंगे. दैट इज कॉल्ड एज मल्टीपल. मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, तो एक से ज्यादा क्लासेस से एक नई क्लास क्रिएट करना, दैट इज मल्टीपल इनहेरिटेंस. सिंगल इनहेरिटेंस मतलब एक ही क्लास से एक नई क्लास क्रिएट करना. ओके. पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म मतलब एक नाम और उसके बहुत सारे बिहेवियर्स. तो एक नाम से हम एक ही फंक्शन क्रिएट कर सकते थे. अभी तक हमने सी प्रोग्रामिंग में देखा कि अगर हमने एक फंक्शन को नाम दिया है तो वो जो नाम दिया है फंक्शन को,
तो दूसरे फंक्शन को सेम नाम नहीं दे सकते। सिमिलरली वेरिएबल्स के साथ में भी ये कंसेप्ट था कि अगर हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है, एक नाम से ए वेरिएबल क्रिएट किया है, तो हम एक और वेरिएबल ए नाम से क्रिएट नहीं कर सकते। बट polymorphism feature allows you to create a single name. It allows a single name or the operator to be associated with different operators depending on the type of the data which is being passed to it. मतलब एक नाम, एक ऑपरेटर, उसको अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। सेम नाम, सेम ऑपरेटर जो है उसको अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। दैट इज पॉसिबल यूजिंग द फंक्शन ऑफ यूजिंग फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो कैसे इंप्लीमेंट करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म इन C++? हम फंक्शन ओवरलोडिंग का कंसेप्ट देखेंगे, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट देखेंगे, और उसके बाद में रहता है एक डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, दैट इज डायनेमिक बाइंडिंग व्हिच इज पॉसिबल यूजिंग वर्चुअल फंक्शंस। तो ये जो पॉइंट बता रही हूँ, पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, इनहेरिटेंस के ऊपर एक पूरा चैप्टर है, उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग करेंगे ये अलग अलग टॉपिक्स है, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये टॉपिक्स है। तो अभी आपको सिर्फ एटलीस्ट पॉइंट्स के नाम मालूम होने चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये पूरा का पूरा C++ का समरी बता रही हूँ कि इस ये सारी चीजें हम एक एक चैप्टर, दो चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट फीचर ऑफ oops is message passing. Message passing means that is the process of involving an operation on an object. In response to a message, corresponding method is executed in the object. Object के थ्रू एक मेथड को कॉल करना, मैसेज पास करना, एक मैसेज को दूसरे, मतलब मैसेज पासिंग का मतलब क्या हो गया कि फंक्शन को कॉल करना। सिंपली बात है, कैसे कॉल कर रहा है? यूजिंग द पैरामीटर्स, जो उसके अंदर पैरामीटर्स रहते हैं उसके थ्रू वैल्यूज पास करेंगे और फंक्शन को कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है, तो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम मैसेज पासिंग करते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द फीचर ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये मैसेज पासिंग फीचर आप जावा में भी पढ़ोगे, देखोगे, पॉलीमॉर्फिज्म भी पढ़ोगे, इनहेरिटेंस भी पढ़ोगे। नेक्स्ट सेमेस्टर में यू हैव जावा प्रोग्रामिंग। Extensibility means it has a feature to extend the functionality of the existing software components. मतलब जो हमारे पास में ऑलरेडी फीचर्स अवेलेबल है उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको हम खींच सकते हैं, उसको हम इलेबोरेट कर सकते हैं। दैट इज पॉसिबल यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस एंड इनहेरिटेंस। मतलब जो हमने रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड का कंसेप्ट बताया था उसी से रिलेटेड है एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी allows you to extend the class. How you extend the class is through inheritance or through the abstract classes. Persistence feature is not supported by C++ programming. Persistence का meaning रहता है कि it is a phenomena where the object outlives the program execution times and exists between the execution of a program is known as persistence. मतलब outlives मतलब जिंदा रहना। अगर हम कोई एक डेटा जो है वो स्टोर करके रखते हैं, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, उसके अंदर कुछ डेटा स्टोर करके रखा, तो वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करके रखने की कैपेसिटी किसके अंदर है? परसिस्टेंस। ये परसिस्टेंस जो कंसेप्ट है ये C++ सपोर्ट नहीं करता। मतलब अगर हमने कुछ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वो ऑब्जेक्ट के थ्रू हम परमानेंटली डेटा स्टोर करके नहीं रख सकते, बट दैट फीचर इज अवेलेबल इन द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. So all database systems supports a persistence. C++ is not being supporting the persistent concepts and that is being handled using file handling. तो हमने file handling का concept पढ़ा था C programming language में, जहाँ पर की features जो है permanently store करने के लिए, data store करने के लिए हमने file handling, file streams पढ़ा था, तो उसके through store कर सकते हैं. But यहाँ persistence keyword persist मतलब एक data जो है डेटा टाइप के साथ में परसिस्टेंट वर्ड यूज नहीं कर सकते, परमानेंटली स्टोर नहीं कर सकते. बट परसिस्टेंट का मीनिंग होता है कि टू स्टोर द डेटा, आउटलिव्स द डेटा while the program is in execution and exists between the executions of a program. प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी वो एग्जिस्ट करता है, एग्जीक्यूशन के टाइम पे भी वो एग्जिस्ट करता है. डेलीगेशन, it is an alternate way of class inheritance. Delegation is a way of making object composition as a powerful inheritance. Two objects are involved in handling a request. दो objects involve हो रहे हैं handling करने के लिए. एक receiving delegate होता है और एक जो ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है. रिसीविंग ऑब्जेक्ट डेलीगेट्स द ऑपरेशन टू इट्स डेलीगेट. जो रिसीविंग ऑब्जेक्ट है वो डेलीगेट कर रहा है, वो प्रोवाइड कर रहा है. जैसे कि एक चाइल्ड क्लास है, तो चाइल्ड क्लास क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट भेज रहा है पेरेंट क्लास को. चाइल्ड क्लास जो है डिराइव क्लास कहलाती है, पेरेंट क्लास जो है वो बेस क्लास कहलाती है. तो जो चाइल्ड क्लास है वो रिक्वेस्ट भेज सकता है पेरेंट क्लास को. तो डेलीगेशन इज रियलाइज्ड
by using the object composition, और इसको has a relationship और container relationship से भी इस्तेमाल किया जा सकता है. So functionality is obtained by assembling or composing objects. ऑब्जेक्ट्स को असेंबल करना, कंपोज करना और उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को इंफॉर्मेशन डेलीगेट करना. ओके. Genericity. Genericity means general. So it is a technique for defining software components that have more than one interpretation depending on the data types of the parameters. एक से ज्यादा interpretation करना generic, that is there. It allows the declaration of the data items without specifying their exact data type, such unknown data types, that is generic data types, are resolved at the time of their usage. मतलब हमने एक जेनेरिक डेटा टाइप क्रिएट कर लिया, सो जब हम उसको यूज कर रहे हैं तो उसको किस तरह से यूज करना है, यूजिंग द पैरामीटर्स यू स्पेसिफाई विच टाइप ऑफ वे यू वांट टू एग्जीक्यूट, दैट इज थ्रू द टेम्पलेट्स. अगर आपने वर्ड और एक्सेल में टेम्पलेट्स करके रहता है, अगर आपके पास में लैपटॉप होगा या फिर आपके पास में फीचर होगा तो उसमें एक फीचर रहता है टेम्पलेट्स. टेम्पलेट वर्ड में रहता है. टेम्पलेट मीनिंग क्या है, एक फॉर्मेट क्रिएट किया होता है, स्टैंडर्ड जनरल फॉर्मेट रहता है. तो आप उस फॉर्मेट को यूज कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट. जैसे कि अगर लेटर क्रिएट करना है, आपको लेटर बनाना है, तो आपने अगर लेटर का टेम्पलेट देख लिया तो उसमें आपको वो पूरा फॉर्मेट रेडी करके रखेंगे. स्टार्टिंग में जो स्टार्टिंग रहता है लेटर का हेडर पार्ट, तो हेडर पार्ट में किस तरह से आप सेंटर का नाम एड्रेस स्पेसिफाई करते हो, फिर बॉडी पार्ट रहता है, फिर नीचे सिग्नेचर पार्ट रहता है, तो वो पूरा एक फॉर्मेट रेडी रहता है, दैट इज कॉल्ड एज एन टेम्पलेट. सो यू कैन हैव जनरेसिटी concept, that is creating such type of function templates and class templates also in C++ programming language. तो इस तरह से टेम्पलेट का कंसेप्ट हम बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं. So these are some of the features which we have seen in the these are being supported by the C++ programming language.